हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। As we have been discussing the case scenarios of income tax that Institute has released, continuing the series in this lecture, I am going to discuss case scenario 16. In income tax, it is very important to see the whole act as a holistic view and to understand that the concepts that we discuss in different chapters are very much interlinked. Case scenario 6 is a very good example for that particular concept. हमेशा मैं जब भी पढ़ाती हूँ तब ये चीज बताती हूँ क्लास में कि आपको सिर्फ कैपिटल गेन पढ़ना है तो सिर्फ कैपिटल गेन नहीं पढ़ना है, या अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ मैथ नहीं पढ़ना है, आपको हर टॉपिक को, हर चैप्टर को इंटीग्रेट करना आना जरूरी है, ताकि जब आप आगे चल करके कंसल्टेंसी दे या आगे चल करके किसी भी क्लाइंट का या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का कोई भी टैक्स रिलेटेड इशू आप सॉल्व करें तो आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाते आए कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर अलग अलग एस्पेक्ट्स का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है. One such topic which they have covered in this case scenario is to interlink the provisions of MAT along with the international taxation, which is again a very important concept, and normally questions में ये लोग इस तरीके से कम ही देते हैं तो हमारा ध्यान नहीं जाता है. See, whenever you are talking of taxation, that is a whole subject, और आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इंडिपेंडेंटली नहीं हर चीजों को इंटीग्रेटेड तरीके से एनालाइज करना है. So let us start the case scenario, and जहां जहां पर जो provisions required होंगे I'll be explaining them, and then we'll be moving to the questions. The case scenarios that I have already discussed, I'll be sharing the links along with this video. So one by one we'll be completing all of the major case scenarios that the institute has released. Apart from this as well, अगर आपकी तरफ से आपको कभी लगता है कि कोई particular topic या question या anything which you think needs some kind of clarification or you want a kind of understanding, you can surely contact. चलिए, DEF Incorporation, a company incorporated under the laws of country A, that means this is a foreign company, is engaged in management consultancy services. ठीक है, it has set up a branch office in India. India has a DTAA with country A. ठीक है, सो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि थोड़ा हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी इसमें कनेक्शन है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 इट अर्न्स द फॉलोइंग इनकम्स इन इंडिया. ठीक है, तो इंडिया में से उसने क्या क्या अर्न किया वो दिया है. फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, इन परसुएंस ऑफ एन अग्रीमेंट मेड विथ इट and approved by central government. The tax rate on such income under India country A tax treaty is 10% on gross income. ठीक है, तो gross income पर 10% का रेट है टैक्स का. The fees is not effectively connected with the branch office in India. मतलब ये जो इनकम है ये ब्रांच जो इंडिया में है उससे रिलेटेड नहीं है. ठीक है, DEF incurred expenses of 3 lakhs in earning such fees for technical services. Now, very important point to be kept in mind. हमने दो अलग अलग सेक्शंस पढ़े हैं, 44DA and 115A. जब आप कोई भी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की बात करते हो और अगर वो same case Indian company in pursuance with an agreement which is approved by central government, if that particular agreement or the service is effectively connected with the branch office in India, that means the establishment in India, then that is taxable under section 44DA as per the provisions of the relevant section, and if not taxed under 44DA, then the section applicable is 115A. Now in this case tax treaty में जो rate है वो आपको given है 10%. आगे बात करते हैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. ठीक है, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ बॉटल प्राइवेट लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, फॉर 2 crore 60 lakhs. तो हमने एक इंडियन कंपनी के शेयर्स को सेल किया है. अदर इनकम है 10 लाख की. ऑल ऑफ द अबव इनकम हैव बीन क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी. ये जितनी भी इनकम है ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्रेडिट करके रखी है. ठीक है, DEF Incorporation had made an investment in 100% equity capital of Bottle Limited, purchased for 1 crore 75 lakhs on 5th of November 2004. The said shares were purchased out of foreign exchange brought from outside India. तो ये जो बॉटल कंपनी है जिनके शेयर्स हमने सेल करे हैं
उसका पूरा इक्विटी हमारे पास ही था, 100% पूरा हमारे पास था, और वो हमने फॉरेन एक्सचेंज में परचेज किया था। तो हमारा जो भी टैक्सेशन होगा वो अकॉर्डिंगली होगा। समझते हैं आगे। सो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, in the context of provisions of 115JB, that is MAT, state which of the following statements is correct. Provisions of MAT do not get attracted क्योंकि वो foreign company है. Provisions of MAT do not get attracted since its entire income is subject to tax at a lower rate prescribed in 115JB. The provisions of 115JB are attracted since the resident of a country with which India has DTAA, and provisions are attracted since provisions are applicable to every company deriving income from India. Now, very important point. जब आप मॉड्यूल देखोगे तो हो सकता है ये पार्ट हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मिस किया हो. वी हैव डिस्कस्ड इट व्हेन आई हैव वी हैव डिस्कस्ड दिस चैप्टर इन द रेगुलर क्लासेस, कि आपका जो मैट का प्रोविजंस पूरा खत्म होता है उसमें एकदम लास्ट में आपको एक छोटा सा टॉपिक गिवन है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज, और वहां पर एक टेबल है जहां पर उन्होंने 2 केसेस बताए. अगर DTAA है जिस कंट्री में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके साथ, तो फिर क्या होगा, और अगर DTAA नहीं है तो क्या होगा. When there is a DTAA with the country in which the company is incorporated, then that will be applicable if there is a permanent establishment of that company in India. Now clearly in this question they have explained कि एक ब्रांच ऑफिस है हमारा यहाँ पर, और क्योंकि ब्रांच है तो हमारा P इंडिया में है, therefore provisions of MAT shall be applicable. So हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी. So ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत ध्यान रखनी है. हम मैट में एडलेस तो देख लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आपको वैसे ही मिलेंगे, नो डाउट प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा उसी चीज के आने की है, बट यू ऑल नो इंस्टीट्यूट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, सो यू नेवर नो किस पॉइंट पर आपको क्वेश्चन आ जाए. तो ये जो छोटी छोटी चीजें इन्हें भी आपको फोकस करना जरूरी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द रेट एट विच फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज received by DEF incorporation is chargeable to tax in India? So in this case, our section applicable will be 115A, as the fees is received for technical services and it is in pursuance with a agreement approved by central government with an Indian concern. और ये हमारे वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से इफेक्टिवली रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये 44DA से बाहर हो जाता है, 115A में कवर हो जाता है. और 115A में इन सर्विसेज पर जो रेट है दैट इज 10%, और इफ the treaty provides for a lower rate then the lower rate. So in this case our applicable rate will be 10%. Also in this particular provision no deduction for any expenditure is applicable. So यहाँ पर हमारा जो expenditure given है आपको 3 lakhs का, उस पर कोई deduction आपको available नहीं होगा. So the rate will be 10% on the full gross amount, that is 75 lakhs. एक अगेन देयर इज अ वेरी गुड फ्लो चार्ट गिवन बिकॉज दिस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इसके 2 अलग अलग सेक्शंस है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है. सो एक बहुत प्रॉपर आपको फ्लो चार्ट दिया है कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगर वो इंडियन कंसर्न के साथ है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है विच इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, तो दोनों केसेस बताए हैं उन्होंने, कब 44DA लगेगा, कब 115A लगेगा, एंड अकॉर्डिंगली कंप्यूटेशन कैसे होगा, दैट दे हैव mentioned. So you can just go through that. That will help you all understand both the sections. But वैसे हमने डिस्कस कर ही लिया. In respect of sale of shares, state which of the following statement is correct. तो obviously that particular income will be chargeable to tax in India. तो आपने फॉरेन करेंसी में उस पर्टिकुलर इनकम को परचेज किया था. क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला हुआ है कि द पर्टिकुलर असेट्स वर परचेज आउट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज $3,50,000 एंड उसी के बेसिस पर आपने परचेज किया था, जो कि अब आपने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है. सो कैपिटल गेन शैल बी एप्लीकेबल एंड द रेट in which on which the capital gain shall be taxable will be 10% without giving the benefit of indexation and foreign currency conversion. So this will be the provision that will be applicable क्योंकि इंडियन कंपनी है, उसके शेयर्स आपने परचेज करे फॉरेन एक्सचेंज में, नाउ यू आर सेलिंग दैट, सो कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%. कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा और फॉरेन करेंसी कन्वर्जन का भी बेनिफिट आपको अलग से नहीं मिलेगा. मूविंग ऑन टू द लास्ट केस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस 16.4, which of the following statement is correct assuming that the rates specified in the DTAA are the same as provided under the act? Now one point is to be kept in mind, whenever you are calculating MAT, एक पॉइंट आपने उसमें पढ़ा है, एड और लेस में एक पॉइंट होता है लेस में, कि कोई भी इनकम
जो 115A में कवर हो रही है और एक फॉरेन कंपनी को अक्रू हो रही है 115A में कवर हो रही है, जिसका टैक्स रेट कंसिडरिंग DTAA is lower than the MAT rate, that is 15%, will not be included in the book profit. तो मतलब इस फॉरेन कंपनी को नॉर्मली तो मैट के प्रोविजंस तो अप्लाई होंगे, लेकिन वो जो पर्टिकुलर इनकम है, अगर उस इनकम का जो रेट है वो आपके नॉर्मल मतलब मैट के प्रोविजंस के रेट से कम है, 15% से कम है, देन दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन, सो इन ऑफ द कंपनी, while computing the book profit for the purposes of MAT. इन दिस केस आपका जो कैपिटल गेन है वो भी 15% से कम पे टैक्स हो रहा है, और आपका जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है वो भी 15% से कम पर चार्ज हो रहा है. देन इन दिस केस both of the incomes will be reduced from the book profit for the levy of minimum alternate tax. So कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, both capital gains and fees for technical services will be reduced from the book profit while computing the book profit for levy of minimum alternate tax. So as the provision in MAT clearly states that any income under 115A or capital gains accruing to the foreign company which are included in the book profit, which are included in the profit and loss account, and if taxable at a rate lower than 15%, considering the DTAA as well, then that particular provisions shall, then those particular incomes will not be included in the definition of बुक प्रॉफिट, तो आप उसको रिड्यूस कर देते हो. सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों को ही हमको क्या करना होगा? रिड्यूस. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन गिवन इन केस सिनेरियो 16. छोटा सा था एज कंपेयर टू द अदर केसेस. इसमें 4 ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन चारों ही बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस थे. कंप्यूटेशनल पार्ट कुछ भी नहीं था, देखो हमने कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करी, लेकिन बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स पर से उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको यहाँ पर सीखने को मिली है या समझने को मिली है कि इंटीग्रेट कैसे करना है. मतलब आप देखो नॉन रेसिडेंट का प्रोविजन, DTAA के प्रोविजन और मैट, तीनों को उन्होंने आपस में लिंक करके आपको पूरा एक्सप्लेन किया है. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. सो ट्राई टू सॉल्व दिस. इन केस ऑफ एनी इश्यूज, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. ऑल द बेस्ट.